पार्टी का वर्कर भी हमारा एसेट है, वो भी हमका बहुत काम किया। No, I was no, not at all. No. I am not at all nervous because always why I'll be nervous, because it was 200 plus always. But you know that one section of people, they started making some conspiracy and they started some confusion among the people, and it didn't work at the grassroots level. पार्टी, लेफ्ट पार्टी, बीजेपी, मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स, इस बार आपको लगा कि इट इज ममता वर्सेस ऑल? कभी कभी ऐसा लगा आपको? नहीं, इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, वो दो चार सेल्फिश लोग हैं। वो सीपीएम का पार्टी मेंबर है, कांग्रेस का पार्टी मेंबर है। दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स। बंगाल द नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इज वेरी हाई and they are with us. I don't believe all this. I don't agree with this. But of course, the CPM, Congress, BJP, they were against of me and one section of media in Bengal. You know, they are very powerful media, but not the national press. You know, you fought the last election 2011 with the Congress. This time the Congress joined the left. Do you believe that there is any possibility in the future of the Congress being part with you, or is that chapter over? You have a close relationship at one time with Sonia Gandhi. Is that chapter over? Rajiv ji, number one, that it is when there is an alliance with Congress, that time our seat was 184, but this time we have got alone 2/3 majority we have got already. Number two, this Congress, it is their blunder. It is they have gone with leftists, so they have to decide. It is not our fault. So there should not be any compromise. You know, in a war, in a war-like situation, election is just like war, democratic war. So there we cannot compromise some people who will go against of us. That is not fair also. So there are so many parties are alive in this country. Why Congress? नहीं, आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? आपकी दुश्मन नंबर 1 पार्टी कौन है अभी? हमारा इडियोलॉजिकली हमारा दुश्मन का बात हम नहीं करते हैं। पॉलिटिक्स में थोड़ा अच्छा वर्ड यूज करना चाहिए। सो बीजेपी इडियोलॉजिकली वी डोंट सपोर्ट देम, सो वी ऑलवेज यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट ऑफ देम। एंड कांग्रेस, दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी. It is they are making all blunders, and that's why they have lost Assam, they have lost Kerala. In Bengal also, they may get some seat, but that is temporary. It is nothing is there. No, the reason I am asking you this, there is one belief कि ममता बनर्जी अब नेशनल लीडर बन गई है। अगले जनरल इलेक्शन में you will be part of a federal front. You tried it once. सब स्टेट लीडर्स के साथ एक नया फ्रंट बनाएगी। ये हो सकता है? ममता, नीतीश, अब जयललिता, यू ट्राइड इट लास्ट टाइम, इस बार भी कोशिश करेंगी? देखिए, फेडरल फ्रंट तो देश में होना ही है। ये तो फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इसको जरूरत होता है। लेकिन हम तो नीतीश लालू जी सबका साथ हमारा रिश्ता अच्छा है, लेकिन वो लोगों को भी डिसाइड करना होगा कि अगर सीपीएम कांग्रेस एक साथ में रहेगा तो हम तो सीपीएम कांग्रेस का साथ नहीं रहेगा। नहीं, पर ये मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप फ्यूचर में कांग्रेस के साथ किसी फ्रंट में रहेंगी या उनसे अलग रहेगी? अगर कल राहुल गांधी आपके पास आए और कहे ममता जी हमारी भूल हो गई, आप तैयार हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा यूएसपी तो राहुल गांधी है, और कुछ हम नहीं कहने चाहूंगे अभी। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा यूएसपी राहुल गांधी है। आपने एक बड़ी बात कही है। यू हैव सेड अ वेरी बिग थिंग देयर। आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद नरेंद्र मोदी? लोगों ने बोलता है। What is your relationship with Narendra Modi? Because he wants your support for GST. Prime Minister? No, GST is our commitment, manifesto commitment. That is an absolutely different thing. You don't compare with all this. Narendra Modi ji is a
country prime minister. So we respect the chair. Political relation is different something. Politically you don't support them. So this is the prime minister, chief minister, the relation, federal structure, whatever it deserves. But you don't see yourself in future ever tying up with the BJP. Any future tie-up will at all, if at all, will be Congress or a federal front. No. I will favor the federal front. Let me ask you Their today. Congress can join. Yes. Their Congress can join, no problem. Their Congress can join. Interestingly, federal front where if Congress wants it can join. B team at best. Mamta Di, you said in your press conference that you felt the media was against you. No, but with CPM. Not with But CPM. with CPM, I cannot. No, I understand. cannot work with Congress. Yeah, No, you cannot work I with the cannot CPM. Work with CPM. But tell me, in your press conference, you said media is against you. I know that Telegraph, ABP was seen to be hostile to you, but Not national. not national, local media. But some of Not the issues. hostile. Don't say hostile. Don't say hostile. No. Okay. But Not some, all local media. It is a one monopoly house. Right. But national media, I have great respect. Other regional channel also, I have a great respect. International channel also, I have a great respect. All are not equal. You cannot compare potato with potato chips. how would you respond, Mamta Di, to those who are saying this will now be more difficult 5 years? First 5 years was breaking the monopoly of the left. Now you have to deliver on all your promises. People's expectations have gone up. लोगों की उम्मीदें बहुत हैं आपसे. आप कैसे deliver कर पाएंगी? हम जो डिलीवर कर दिया ना 40 साल को कर दिया. आप पहले इसको तो देख लो. आप पहले उसको संभालो. पर अब लोगों को नौकरी चाहिए. कई चैलेंजेस है बंगाल में. तो राजीव जी थैंक यू कर दे. हाँ? वो हम कर दे. बंगाल में बहुत सारे काम हुआ. आप देख लो. हमारा जो बंगाल में जो हुआ है ना कोई जगह पे नहीं हुआ. आप देख लो. सबसे बड़ी बात क्या हुई? वो कंट्री में बेस्ट है. सबसे बड़ी बात क्या हुई बंगाल में जिससे आपको इतनी बड़ी वोट मिली है? क्या क्या नहीं पानी हुई? का मसला, पावर, क्या नहीं मेडिसिन? हुई? देखिए पावर लोड शेडिंग हमने पूरा खत्म कर दिया. लोड शेडिंग नहीं है. पावर क्राइसिस तो एकदम नहीं है. फार्मर्स लोगों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है. हम 2 रुपया केजी चावल दे रहा है. हमारा 40 लाख हम साइकिल दिया है गरीब स्टूडेंट को. ऐसा हमारा माइनॉरिटीज को हम 1 लाख 5 करोड़ 1 करोड़ 5 लाख स्कॉलरशिप दिया है. हमारा कन्याश्री प्रोजेक्ट है. देयर आर सो मेनी. बट एक क्रिटिसिज्म जो है, एक क्रिटिसिज्म जो है खास करके लोकल मीडिया में वो थी करप्शन. सारदा, नारदा और उसके बाद सिंडिकेट्स. किस तरह डिड योर क्रेडिबिलिटी गेट अफेक्टेड? डू यू बिलीव करप्शन हिट योर क्रेडिबिलिटी? Do you think so? May I I'm ask you asking this you. question to you, all of you? Who raised this? One section of media, that is ABP, Abhik Sarkar Group. Shall I say why? What is his interest? What is his self-interest? And now people have given the reply. I think you have got your reply because they raise this issue always. Sarda to Narda, nothing is there. It is only the election issue and people give them the befitting reply. But you will accept that you need to introspect, change your ways in some way, because in Sarda some of your own MPs were arrested. Would you need to change your ways? Don't ask me all this because we know we do the fair politics. It is no any other political parties. Do you I am believe? proud of my party. I am proud of Bengal in this regard. But do you believe I it was a think- conspiracy? I think, Rajdip ji, please finish it now because so many people are waiting. No, do you believe it was a conspiracy? Yes, it's a क्या ये conspiracy. I साजिश told you थी? ABP conspiracy. And नहीं, ये Congress- क्या ये साजिश थी? Of course it is. It was साजिश conspiracy. तो था ही. ये साजिश था कांग्रेस का, बीजेपी का, एबीपी का. कॉन्स्पिरेसी बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम और एबीपी ग्रुप का था. तो ये नारदा पूरा कॉन्स्पिरेसी था. अभी हम इसको डिस्कशन नहीं करने चाहूंगी. Okay, Please, last आपको- question. आज देखिए बहुत सारे लोग इधर Last खड़ा question. है. Last question. फिर कभी Last बात question. करेंगे You are इसके बारे में. tired. I know you are tired. You've run a long campaign. How are you going to relax? इतने दिनों में ममता बनर्जी रिलैक्स No, कैसे I am करती not है? tired. No, please. No relax. आप क्यों बोलते हैं आई एम टायर्ड? आई डिडंट से, आई नेवर से आई एम टायर्ड.
No How can you relaxation relax? because every time I have to work. No, you have Now thousands of people are waiting in the outside. but you have campaigned so hard. What does Mamata Banerjee do If I today? do the work for the people, that is my no. No, I saw a very good cooking recipe. I saw you did a very good cooking recipe on a program. Will you relax today with your family? You have won a big victory. You are not even smiling as you normally do. You seem to me कि थोड़ा relaxation क्यों नहीं करती हो nowadays, madam? Where is your relaxation? नहीं नहीं, देखिए पब्लिक बहुत है, उसको साथ बात करना हमारा सबसे जरूरी है. रिलैक्सेशन, अभी रिलैक्सेशन का टाइम कहाँ है? अभी तो पब्लिक का काम करना है. What is your priority now? पब्लिक का काम करना है, मेरे को रिलैक्सेशन होता है. What is your number one priority now? My priority to work for the people. Last time you said माँ माटी मानुष. Do you have a slogan this time? Last time your slogan was माँ माटी This time मानुष. also say. इस बार क्या Of slogan course, है? they will continue. This time also, Mamati Manus. Mamati Manus is my inspiration. They are my strength. They are my everything. Because what our numbers have shown, you have done very well in rural Bengal, in villages. अच्छा, ready? Hello, producers, can you get? तो छोड़ नहीं. ममता बनर्जी जिस तरीके से सवालों का जवाब दे रही थी, संकेत बहुत साफ है. वो समझ रही हैं कि ये आने वाले वक्त में जो काम करना है, जो चुनौती है. लेकिन एक बात है, ममता बनर्जी जिस तरीके से किसी एक्टिविस्ट की तरह है. सुबीर, हम आपसे जरा ममता बनर्जी का पूरा स्टाइल जो है इंटरव्यू का, लग रहा है कि एक्टिविस्ट ही है अभी भी. वो है बकायदा एक्टिविस्ट है. उनका तरीका ये रहा है, किसी जमाने में कहा जाता था कि लेफ्ट फ्रंट का ऑप्शन बेटर लेफ्ट फ्रंट है. ममता बनर्जी का स्टाइल है कि इन वन पीस शी इज द रूलर, शी इज ऑल्सो द ऑपोजिशन, शी इज द एक्टिविस्ट, शी इज ऑल्सो द पर्सन इन पावर. सत्ता भी संभालेगी और विरोध का जहाँ क्षेत्र है वहां भी वो हावी है. नहीं, एक चीज और है कि जनता के साथ सरोकार कैसे जुड़े रहें, इसको लेकर लगातार बेचैनी उनमें दिखाई देती है कि हम जुड़े रहें लोगों के साथ. नहीं, उनको ये घबराहट होता है कि अगर वो जनता के साथ जुड़े नहीं हैं, और इसलिए देखिए घर उन्होंने बदला नहीं, कोई कहीं नहीं. घर ये भी आप याद रखिए, बुद्धदेव बाबू भी अपना घर से नहीं गया था. वो पाव एवेन्यू में वो 2 कमरे का फ्लैट में था, जो मेरा फ्लैट से छोटा है. वहाँ उसके बेटी वो थोड़ा ये जंतु जानवर में दिलचस्पी है तो सांप वाँप घर में रखती थी. बड़ा परेशानी था, 2 कमरे का मकान है. तो बुद्धो बाबू, ये बंगाल का पॉलिटिक्स का एक ट्रेडिशन है कि आप जितना ऑस्टायर और फ्रूगल कि साहब आप बड़ा हेवी लाइफस्टाइल लीड नहीं करते हो, तो इसका एक अच्छा नतीजा आता है. पीपल लाइक सच पीपल. तो ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है. दुश्मन नंबर 1 कोई नहीं, बीजेपी से रिश्ते नहीं, बट कहा ना लेफ्ट के साथ में कुछ नहीं होगा. अगर कोई फेडरल फ्रंट का जिक्र किया ना राजदीप ने, तो स्पष्ट कह दिया कि फेडरल फ्रंट में लेफ्ट होगा तो हम नहीं होगा. तो ये फैसला सब पार्टी को करना है कि लेफ्ट को रखेंगे नहीं रखेंगे. और यही वजह है कि फोर्थ फ्रंट बना. आपको क्या लग रहा है, जो नई सरकार जब 27 तारीख को उन्होंने ऐलान किया कि 27 को शपथ लेंगी, कैबिनेट वही रहेगी? करीबन करीब एक मुझे लग रहा है कि फाइनेंस से शायद अमित मित्रा को वो हटाएं और उनको पूरी तरह से इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का चार्ज दें. क्योंकि अभी इनके लिए इनको ये एहसास ज़रूर होगा कि बहुत बड़ा उद्योग लाने का एक कोशिश होगा. और वो एक ही बंदा है तृणमूल में जो ला सकता है, वो अमित मित्रा, क्योंकि वो फीकी में थे. उद्योगपतियों के साथ उनका अच्छा हिसाब किताब है. अब फाइनेंस चलाकर, फाइनेंस एक अपने आप में वित्त एक ऐसा मंत्रालय है जो जिसका बहुत ज़बरदस्त प्रेशर होता है. तो वो ये सब दूसरे इंडस्ट्री और कॉमर्स में ध्यान दे नहीं पाए. हालांकि कॉमर्स उनको दिया गया. तो मुझे लग रहा है फाइनेंस में वो किसी को लाएं. और ये भी है कि फाइनेंस में फाइनेंस किसी को पहली बार किसी पॉलिटिकल पर्सन को दिया जाएगा. अमित मित्रा पॉलिटिकल नहीं थे, उनको नहीं, अमित मित्रा पॉलिटिकल नहीं थे. और वाम मोर्चा के जमाने में भी आप याद करें, असीम दासगुप्ता ही इज ऑल्सो एन MIT. ये मोटा मोटी एक ट्रेडिशन रहा है. ज्योति बाबू भी वित्त मंत्री उन्हीं को रखा जो एक्सपर्ट है, इकोनॉमिस्ट है. हाँ. इन्होंने भी उसको बरकरार रखा. बट अब शायद ऐसा हो कि अमित मित्रा तो रहेंगे एडवाइस, बट अमित मित्रा को ज़्यादा जिम्मेदारी वो उद्योग वगैरह बंगाल में लाने को देंगे. क्योंकि उनको ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि अगर इसके बाद का स्टेप अगर उनको सीमेंट करना है, जो नौकरी वोकरी का जिक्र किया गया था, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट बंगाल में लाना बहुत ज़रूरी है. हाल ही में देखिए, गए 2-3 महीनों में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट लाने का भी जिक्र हुआ है बंगाल में. ये सब पहली बार हुआ है. इससे पहले क्या हुआ
वो सिंगापुर गए, लंदन गए, अच्छा, बकिंगम दर्शकों को पैलेस एक चीज देखकर बतला दें, दरअसल स्क्रीन पे कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है तो सोच रहे होंगे ये कहाँ पर जश्न है। ये पुडुचेरी का जश्न है। पुडुचेरी में जो कुछ वहाँ पर कांग्रेस जीती है कुछ सीट ज़्यादा, तो वहाँ का ये जश्न दिखाई दे रहा है, जो कि तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस डीएमके वहाँ भी एक साथ है। वहाँ पर वो 14 सीट पे आगे है पुडुचेरी में, तो सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर वहाँ पर उसकी मौजूदगी है। तो 30 में से 14 सीट के हिसाब से अगर देखें तो जाहिर है बहुमत के बिल्कुल नज़दीक है। 14 सीट वो उसके नज़दीक रुझान में वो आगे चल रही है, और इसीलिए ये जश्न जो है पुडुचेरी का दिखाना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस और डीएमके गठबंधन ने पुडुचेरी में सिंगल लार्जेस्ट के तौर पे उसकी मौजूदगी है इस गठबंधन की। 30 में से 14 सीटों पर वो आगे है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस बात का जिक्र बार बार इस जनादेश के साथ निकल रहा है कि कहीं पर परसेंटेज ऑफ वोट देखा जा रहा है, कहीं सीट देखा जा रहा है, और हर कोई एक आस है कि आने वाले वक्त में वो किसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की। अतुल कुमार अंजान साहब, हमारी आवाज़ अब तक आ रही है? चलिए, वो हमारे साथ अभी है नहीं मौजूद। लेकिन संजय, अब इसके आगे का हिस्सा ये है कि ममता बनर्जी के सामने चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन लेफ्ट क्या वाकई अब इस देश के भीतर विचारधारा नहीं बल्कि एक गठबंधन के तौर पर अल्टरनेटिव बनाने की स्थिति में खत्म हो गया? आज उसका पटाक्षेप हो गया, बिल्कुल ये खत्म मान लिया जाए। बिल्कुल। देखिए, लेफ्ट हमेशा ये बात रही पिछले कई दशकों से कि लेफ्ट एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है। पार्टी चुनाव जीते या हारे, बट जिस समय उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का तय किया और गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, उस समय ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस और लेफ्ट, जो दोनों अपने आप को विचारधारा में अलग अलग मानते थे, दोनों का साथ आना इस बात को दर्शाता है कि क्योंकि बड़ा इंडिकेशन आज दिया अतुल कुमार अंजान ने कि केरल का फार्मूला ठीक है, बंगाल का फार्मूला ठीक नहीं है, तो ये बीजेपी को लाभ पहुंचाएगा। ये क्या जयललिता फायदेमंद साबित होगी मोदी गवर्नमेंट के लिए, राज्यसभा में खास तौर से? हाँ, नहीं देखिए, ये आपका अच्छा सवाल है। अभी तक एक तरह से जयललिता बीजेपी सरकार को पार्लियामेंट में तो सपोर्ट देती रही है। एक आध छोटे मोटे इशू में उसने एक मिनट बता दें, जयललिता ने सीधा हमला डीएमके पर किया है, करुणानिधि के परिवार पर किया है कि फैमिली पॉलिटिक्स को तमिलनाडु ने खारिज कर दिया और तमिलनाडु को अब हर क्षेत्र में वह नंबर 1 बनाएंगी। जनता को उन्होंने धन्यवाद दिया है। ये जयललिता की तरफ से कुछ देर पहले ये बयान आया है जिसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा है फैमिली पॉलिटिक्स को जनता ने खारिज किया है। हाँ श्रीनिवासन जी, अब आगे देखना होगा। देखिए, जयललिता जब पावर में आई थी पिछली बार 2011 में, उनका पहला 2 साल तो बहुत अच्छा चला था। उसके बाद जो एक जजमेंट आया डिस्प्रोपोर्शनेट केस का, उसके बाद उनको अपना एक डमी सीएम रखना पड़ा कुछ दिनों के लिए। उसके बाद वो जो लौट कर आई, उनका कुछ रूप और था, वो थोड़ा सा अनसर्टेन दिखी, क्योंकि रूल बाहर से कर रही थी, फिर दोबारा आई सीट पे। तो उन्होंने फिर उसके बाद चेन्नई में बहुत बड़े फ्लड्स हुए, उन्होंने रिकवरी में थोड़ा सा उनको टाइम लगा। इस दौरान सेंटर ने बीजेपी ने अपना रिलेशन उनके साथ ठीक ठाक ही रखा। मैं तो ये भी कहूँगा कि बीजेपी ने अपना रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए खुद को भी थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया, क्योंकि जो बाकी जो उनका खुद का जो 2014 में जो अलायंस बना था वो इसलिए टूटा क्योंकि अलायंस के कई मेंबर बड़े शक से देखते थे कि यहाँ तो हमारे साथ अलायंस है, मगर वो पोस्ट गार्डन में मैडम के साथ लंच और ब्रेकफास्ट होता है, मीटिंग उनके साथ होती है पीएम का, तो उससे थोड़ा सा वो भी ये सवाल से देखिए जुड़ा हुआ है। नलिन कोहली जी, हम आपसे जवाब चाहेंगे कि शारदा नारदा का जिक्र बीजेपी चुनाव प्रचार में लगातार करती रही, तमिलनाडु में भी चुनाव प्रचार के दौरान करप्शन का जिक्र लगातार हो रहा था, एसेट का जो मामला है उसको लेकर भी, लेकिन अब दिल्ली में सरकार को जरूरत है, मोदी गवर्नमेंट को, कम से कम पार्लियामेंट के भीतर भी जरूरत। तो क्या ममता और जयललिता ये स्ट्रेटेजिकली आपको लगता है कि अब जरूरत आ गई है और आप नजदीक कॉम्पिटिवली महसूस करेंगे? एग्रीमेंट क्लियर करने के लिए तो ममता का सपोर्ट जरूरत होगा। हाँ, और वो इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात। जरा पूछ ले। हाँ बिल्कुल, कोहली साहब। मैं पहली बात मैं इसको एक थोड़ा सा इसको अगर एक और रूप से देखना पसंद करूं कि अल्टीमेटली जो भी पास होता है देश में पार्लियामेंट में, उसमें ये ऐसा थोड़ी ना होता है कि बीजेपी या कांग्रेस या कुछ,
जो भी देश हित में कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आपको एक अमेंडमेंट लाना है तो सारी पार्टियां उसके पक्ष में होंगी, 2/3 बहुमत से आएगा तभी होगा। तो इसीलिए मैं मानता हूं सबका स्टेक होता है, ये ऐसा नहीं होता किसी एक विशेष पार्टी का स्टेक इसमें है। दूसरा जो विषय है कि जब चुनाव प्रचार में उतरते कोई पार्टी है, भाजपा हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो, जब चुनाव प्रचार में हम लोग उतरते हैं तो निश्चित तौर से अपनी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने के लिए, और हम चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट जीते। तो जो मौजूदा स्थानीय और कई बार राष्ट्रीय मुद्दे उसको उठाते हैं, हम जोर से उठाएंगे, ये कहीं नहीं रहेगा, इसमें कोई क्लैश नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। लेकिन चुनाव के बाद जनता अपना परिणाम कहती है, एक किस्म से रिजल्ट एक एग्जाम का आ गया है। अब उस रिजल्ट के एग्जाम में क्या उसी पेपर पे आप रह जाएंगे या आप आगे बढ़ेंगे? तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, मुझे इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता है। जब आपका चुनाव आता है आप अपना चुनावी काम करेंगे, जब निर्माण की बात आती है चाहे राज्य के अंदर या राष्ट्र के अंदर, वो निर्माण का काम करेंगे। ये दोनों कभी कभी साथ चलती भी है, कभी कभी अलग भी होते हैं। नहीं तो कांग्रेस को लेकर जो तनाव और जो आपस में टकराव की स्थिति है बीजेपी की पार्लियामेंट के भीतर भी, क्या वो नेचुरल प्रोसेस है या लगता है कि नहीं पॉलिटिकल स्ट्रेटजिकली ठीक है वो भी? मुझे लगता है इसका प्रश्न आपको कांग्रेस से पूछना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व को पहले यह तय करना पड़ेगा वो खड़े किसके लिए, व्हाट डू दे स्टैंड फॉर। अगर मैं इसको एक और रूप से लूं बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए, तो ऐसा लगता है कि मीडिया में छाने के लिए, अपने आप को इवेंट टू इवेंट प्रासंगिक करने के लिए कई चीजें हो रही है। क्योंकि कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी रही है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी में 55 साल रही है सत्ता में, उसके बाद आप खुद देख लीजिए क्या आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, और कांग्रेस से क्यों वरिष्ठ के नेता के बाद नेता छोड़ के जा रहे हैं। असम में अगर आप देखें हेमंत बिस्वा शर्मा, वो एक बड़े कद्दावर नेता है कांग्रेस के, उनके बयान सुनिए आपके चैनल अन्य चैनलों पे कि उनके साथ किस प्रकार से बर्ताव रहा, क्या वो ब्लू ब्लडेड वर्ड यूज करते हैं। अन्य राज्यों में भी ऐसा ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो कांग्रेस की दिक्कत है, ये भाजपा की दिक्कत नहीं है। जहां तक रवैये की बात है, भाई जो काम पार्लियामेंट में होता है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, जो पारित हो जाते हैं बिल्स, उसका क्रेडिट तो सबको जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि उसका क्रेडिट हम ही लेकर बैठे, वो तो पूरे पार्लियामेंट को जाएगा। मुकेश नायक जी, क्या कांग्रेस के लिए ये हार महज 5 राज्यों में, एक पुडुचेरी छोड़ दीजिए तो 4 राज्यों में सिर्फ कांग्रेस का सिमटना भर नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में जो स्ट्रेटजिकली लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे उसकी भी हार है, वो चाहे पार्लियामेंट के भीतर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो? प्रसन्न जी, देखिए रिजल्ट का हम सम्मान करते हैं और जो जीते हैं उनको हम बधाई देते हैं, लेकिन हम अगर इसका विश्लेषण करें अगर इलेक्शन का, तो पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में हमें 42 सीट मिली थी, अभी हम 44 सीटों पर निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं। हमें 32% वोट मिला है असम में और बीजेपी को 30% वोट मिला है बढ़त में। जिन एक सीटों पर तमिलनाडु और केरल में बीजेपी आगे चल रही थी, अभी सूचना मिली है कि वहां भी वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी 2011 की तरह पांडिचेरी, केरल और तमिलनाडु में एक भी सीट उन्हें नहीं मिल रही है। केवल उन जिन 7 सीटों पर पश्चिम बंगाल में उनकी बढ़त दिखाई जा रही थी, उनमें भी 5 सीटों पर अभी जो सूचनाएं आ रही हैं कि बहुत क्लोज इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं हमेशा किसी मंत्र की तरह किसी डिबेट के अंत में ये कह देते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण की तरफ देश बढ़ रहा है। ये सेक चिल्ली की तरह देखा जाने वाला सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। उत्तर भारत में जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसमें बीजेपी की बहुत खराब हालत है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 15-15 साल की इनकी सरकारें हैं। क्या हालत है इन राज्य की, आज सर्वे करा लीजिए। इन्होंने एक नेता का नाम लिया असम में, हेमंत बिस्वा शर्मा का। मैं बता दूं कि 13 स्कैम में ये फंसे हुए हैं। ये पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। इनके मुख्यमंत्री करप्शन के मामले में 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। 13 स्कैम में हेमंत बिस्वा शर्मा फंसे हुए हैं और यही कारण था कि हम उनको पीछे रखना चाहते थे। लेकिन उनकी समस्या ये थी कि वो हमारे मुख्यमंत्री की जगह लेना चाहते थे, वहां हम उनको बिठाने लायक नहीं समझते थे। उन्होंने खुद अपने रिएक्शन में अभी कहा कि राहुल गांधी जी ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। राहुल गांधी जी साफ सुथरी राजनीति करते हैं। ऐसे नेताओं को कभी हम आगे की पंक्ति पर राजनीति करने के लिए नहीं रखेंगे, चाहे चुनाव का परिणाम कुछ भी आए। जो रिजल्ट आए हैं 4 राज्यों के, उसमें केरल में हमें निराशा हुई है,
और हमें असम में निराशा हुई है। हम इसकी समीक्षा करेंगे, सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखेंगे और असम में जो डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ हमारा तालमेल नहीं हो पाया, उसके कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का हमें डिसएडवांटेज हुआ, इसके बारे में हम पुनर्मूल्यांकन करेंगे। 35% आबादी असम में माइनॉरिटी की है और डेमोक्रेटिक फ्रंट से हमारा अलाइनमेंट नहीं होने के कारण उसका हमें भारी खामियाजा उठाना पड़ा और 32% वोट लेने के बावजूद भी हम वहां सरकार नहीं बना पाए, जबकि गठबंधन में बीजेपी 30% वोट लेने के बाद भी वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में है। नहीं तो मुकेश नायक जी, सोलर स्कैम में तो अच्युतानंदन जी भी फंसे हुए हैं, तो वो उनके लेकर आपने क्यों सहमति बना दी? कॉन्टेस्ट किया इसीलिए कम वोट 30% और 20% की बार-बार बात हो रही है। आपने सीटें कम, बीजेपी ने सीटें कम लड़ी, आपने पूरी सीटें लड़ी, इसी के लिए आपका वोट ज्यादा है। मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी बोले। हम तो अच्युतानंद जी के बारे में पूछना चाह रहे थे मुकेश नायक जी, वो अभी सोलर स्कैम में फंसे। धन्यवाद, मुझे पता नहीं किसने कहा, पर आपने, हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी मुझे पता नहीं किसने पैनल पे कहा, लेकिन मैं यही कहने वाला था पहली बात कि हम कम सीट लड़े, हमारे अलायंस पार्टनर्स बड़े हैं, दोनों मिला के 45% है। तो ये आंकड़ों का एक किस्म से विश्लेषण करना ये अपनी जगह ठीक है। मुकेश जी का अधिकार है, वो एक प्रवक्ता है पार्टी के, तो वो अपनी बात रखेंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश जनता ने क्या तय किया, उन्होंने कहा भाई हम गलत राजनीति नहीं करना चाहते, हम लोग जो है चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा को पीछे रखना चाहते थे। तो फिर बिहार में प्रश्न उठेगा क्यों आप उस अलायंस में हैं, क्योंकि रोज सरेआम मीडिया हो या कोई हो, मर्डर के ऊपर मर्डर हो रहे हैं। तो इसीलिए ये कहने की बात है, उनको अपनी बात रखनी है, लेकिन जनता अंततः तय कर रही है और जनता ने तय कर दिया कि ये चुनाव कांग्रेस का नहीं था। उनको पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। ये जुमले की बात नहीं है कि कांग्रेस मुक्त भारत क्या बीजेपी का एजेंडा है या कांग्रेस अपने आप पर लागू करने में लगी हुई है, और इससे हमारा कोई, हम इससे थोड़ी ना कोई बैर रखेंगे, हमारी कोई लड़ाई है। ये तो अच्छी बात है अगर उस दिशा में अपने आप को बढ़ना चाहते हैं। मूल पॉइंट यही कह रहा था जी। एक सवाल पूछ, हम लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद, मुकेश जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत। जी मुकेश नायक जी, हम आपसे जवाब भी चाह रहे थे कि जिस तरीके से अब जो बीजेपी की जीत है या बीजेपी जो सवाल उठा रही है, लेकिन उससे पहले एक सवाल हमको लग रहा है नलिन कोहली जी, एक सवाल आपके लिए है सुबीर भौमिक का, आप सवाल पूछ सकते हैं सीधे, पहले सवाल पूछ लीजिए। कोहली साहब, एक ही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं कि अब आपका सरकार बन गया, अल्फा को लेके आपका क्या रवैया रहेगा? क्योंकि अल्फा को लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग सिग्नल आप लोगों के तरफ से आया है। श्री रविशंकर जी को लगाया गया था बातचीत करने के लिए, परेश बरुआ को लाभ निकाल कर, अच्छी बात है, परेश बरुआ ने रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि चाइना जाकर एक रिपोर्टर जो कि न्यूज लाइव चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, और सब जानते हैं न्यूज लाइव किसका चैनल है, आप विश्व शर्मा का जिक्र कर रहे थे, उन लोगों का चैनल है। 4 घंटा परेश बरुआ को दिखाया जा रहा है न्यूज लाइव चैनल पे, सेपरेटिस्ट लीडर, भारत का दुश्मन, चाइना का एजेंट, बांग्ला ISI का एजेंट, ये सब बोला जाता है परेश बरुआ के बारे में। दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि आपके कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि अल्फा को हम फिनिश कर देंगे। जो बात कर रहे हैं हमारे साथ वो अच्छी बात है, अरविंद राजखोवा का जो पूरा ग्रुप है, अल्फा का तकरीबन सब बड़े लीडर्स बात में लगे हुए हैं भारत सरकार के साथ। अब इनसे जवाब देते हैं, स्ट्रेटजी क्या है? परेश बरुआ को लेकर आपका क्या रवैया है, ये खुलासा असम के लोग जानना चाहते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी है बीजेपी का। जी कोहली साहब, थोड़ा व्यक्तिगत रूप से भी मैं कहूं, नहीं, मैं आपका प्रश्न समझ गया हूं, और क्योंकि मैं भी पूर्वोत्तर से जुड़ा रहा हूं, मेरा परिवार भी जुड़ा रहा है 86 के मिजोरम अकॉर्ड के साथ, तो इन चीजों को काफी करीबी से देखा है। मैं खुद भी असम में जुड़ा रहा हूं किसी एक रूप से। अच्छा, एक बाय द वे, इसको कहने से पहले तुरा में लोकसभा का बाईपोल था, जहां संगमा जी की मृत्यु के बाद उनके कॉनरेड संगमा ने कंटेस्ट किया, वो भी 2 लाख वोट लगभग से जीते हैं। और वहां पर कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं अपने मुकुल संगमा मेघालय के, उनकी पत्नी जो लड़ी थी वो लगभग 2 लाख वोट से हारी है वहां। तो इसलिए ये भी एक स्टोरी है, उसी से जुड़ा हुआ। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था, आपका जो प्रश्न है, फोकस करके इस पर, पहली बात है सरकार भी बनने जा रही है, 6 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, और ये प्रश्न जो है लॉजिकली ये सवाल जो है नई सरकार पर पड़ेंगे और नीति वो करेंगे स्पष्ट। जहां तक किसी भी ग्रुप की बात हो, जो भारत के संविधान को जब मानने की बात आते हैं, तो एक जो है उनकी वापसी की बात शुरू हो जाती है। जब तक वो संविधान को नहीं मानते,
कोई भी हो, ABC, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, और वो अगर स्टेट के खिलाफ काम करे, स्टेट मतलब भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो वो तो एनिमी ऑफ द स्टेट होंगे ही होंगे। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज और कंफ्यूजन होता ही नहीं है। लेकिन जब कोई भी शांति का पाथ अपनाना चाहते हैं, पथ अपनाते हैं और कहते हैं हम संविधान के दायरे में अपना हल चाहते हैं, तो वो तो स्वीकार योग्य है, क्योंकि यही तो हम लोग इसी पे काम आगे करते हैं। तो इसीलिए मुझे कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिख नहीं रहा। हर चीज की एक स्थान है और टाइमिंग है। अब सरकार जो है, कल को हो सकता है परेश बरुआ कहे कि भाई जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है ये सब मैं छोड़ के आगे बढ़ना चाहता हूं। कई लोग अल्फा से सल्फा हो गए, जिसको आप सरेंडर्ड अल्फा कहते हैं वहां पे। नहीं वो ठीक है, बट परेश बरुआ ने तो रविशंकर जी को ठुकरा दिया कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। उसके बाद आपके लीडर विश्व शर्मा जी का चैनल जाके 4 घंटा उसका इंटरव्यू दिखा रहा है, प्रचार कर रहा है परेश बरुआ जी का। सुबीर जी, नहीं मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं। आप रिपीट कर रहे हैं, जो आप श्री श्री रविशंकर जी की बात कर रहे हैं, वो एक धार्मिक गुरु है, और जो एक धार्मिक गुरु है सबसे मिलते हैं, और अगर कोई धार्मिक गुरु से मिले तो भारत सरकार का एजेंडा कैसे हो गया? कोहली साहब, मेरा सवाल पॉइंटेड सवाल है। उनको एक अवसर, ठीक है, आप जो है एक, मैं भी पॉइंटेड ही जवाब दे रहा हूं सुबीर भाई, कि मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, मैंने बड़ा पॉइंटेड रूप से आपको ये कहा। सरकार बनेगी, मेरे वो मन में कोई देखेगी, वो तय करेगी। अभी सरकार बनने दीजिए, असम में कोई निर्णय उसके बाद लिया जाएगा। एंटी नेशनल निर्णय नहीं लिया जाएगा। नलिन कोहली जी इस दिशा में एक मोहर लगा रहे हैं कि उस दिशा में हम लोग नहीं जाएंगे। अब पहली बार सरकार बनी है। अब मुकेश नायक जी, एक सवाल ये भी है कि क्या ये मैसेज नहीं है कि जनता के साथ कांग्रेस का जुड़ाव गठबंधन के तौर पर हो, सीटों के कन्वर्ट करने के तौर पर, आप जैसे भी जोड़ें, लेकिन इशू गायब हैं। जो इशू कांग्रेस के जरिए पहले निकला करते थे, इशू नहीं है, सिर्फ विरोध है। विरोध किसका है? तो विरोध कहीं पर ममता का है, विरोध कहीं पर बीजेपी का है। नहीं, बिल्कुल प्रसन्न जोशी जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस विषय पे ये कहना चाहूंगा कि चुनाव का गणित पूरे देश में अगर देखें आप, जनरल ट्रेंड बीजेपी के लड़ने का, तो एक्सेप्शनल अगर छोड़ दें, अपवाद अगर छोड़ दें, तो बीजेपी वहीं पर चुनाव जीतती है जहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का उसको एडवांटेज होता है, या सीधी सांप्रदायिकता या प्रच्छन्न सांप्रदायिकता का प्रभाव डाल के वो जनमत को पोलराइज करते हैं। जैसे कश्मीर में इन्होंने कश्मीरी पंडितों को आगे रखकर कितना बड़ा मुद्दा बनाया, चुनाव के बाद उन्हें भूल गए। असम में इन्होंने बांग्लादेश के घुसपैठियों को आगे रखकर असम की क्षेत्रीय अस्मिता की भूख को बहुत बढ़ा दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश के दौरे पर गए तो उन्होंने बांग्लादेश के घुसपैठियों पर कोई बातचीत करना भी उचित नहीं समझा। चाय बागान के श्रमिकों को लेकर जिस तरह की बातचीत बीजेपी ने और आशा जगाई थी, आप सोचिए 2 साल से टी बोर्ड का गठन तक बीजेपी ने सेंटर में नहीं किया है। जिन बड़े बड़े बातों इन तमाम सवालों के साथ हम मुकेश जी उनसे जवाब लेंगे, लेकिन इन तमाम सवाल जो निकल रहे हैं, चाहे वो कॉमनल का मुद्दा हो, चाहे ट्रेड यूनियन जो आप टी वर्कर्स का जिक्र कर रहे हैं, हम इस पर जवाब लेते हैं। नलिन कोहली जी आते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं आपके पास।